کنونشن سینٹر میں وکلا تقریب میں شرکت کیوں کی؟ سپریم کورٹ نے وزیر اعظم عمران خان کو نوٹس جاری کر دیا۔ وزیر اعظم پورے ملک کا ہوتا ہے، کسی ایک گروپ کا نہیں۔ وہ ریاست کے وسائل کا غلط استعمال کیوں کر رہے ہیں؟ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے ریمارکس۔ اٹارنی جنرل، ایڈوکیٹ جنرل پنجاب اور متعلقہ وزارتوں کو بھی نوٹسز جاری۔ سانحہ بلدیہ کیس میں نیا موڑ، سندھ ہائی کورٹ نے 5 مجرموں کی سزا پر عمل درآمد روک دیا۔ پولیس فائل سمیت عدالتی کارروائی اور دیگر دستاویزات طلب۔ عدالت کا 4 ماہ کے اندر تمام ریکارڈ پیش کرنے کا حکم۔ اپوزیشن کی حکومت مخالف تحریک پر سرکار بھی ایکٹیو۔ وزیر اعظم نے پارٹی رہنماؤں کا اہم اجلاس آج بلا لیا۔ مخالفین کے بیانیے کے مقابلے میں جوابی حکمت عملی پر بات چیت ہوگی۔ اتحادی ارکان پارلیمنٹ سے رابطوں پر مشاورت بھی شیڈیول۔ احتساب کا عمل جو سو کالڈ احتساب ہے وہ ادارہ کر رہا ہے، اور آج پورے ملک میں تماشا لگا ہوا ہے، اور یہ ایک حقیقت ہے کہ یا آپ پاکستان کو چلائیں گے یا نیب کو چلائیں گے، یہ اکٹھے نہیں چل سکتے۔ تو آج ہمارا وزیر اعظم کہتے ہیں جی میں جمہوریت ہوں، اس کو کہنے کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ جو شخص جمہوری عمل سے نہیں آتا وہ ہمیشہ دعوے کرتا ہے کہ میں جمہوری عمل سے آیا ہوں۔ احتساب کے نام پر تماشا، کسی کیس میں کرپشن کا ذکر نہیں۔ پاکستان اور نیب اکٹھے نہیں چل سکتے۔ اگر لیگی رہنماؤں پر مقدمات درج ہو سکتے ہیں تو عمران خان کے خلاف بھی پرچہ کٹ سکتا ہے۔ شاہد حقان عباسی کی کراچی میں میڈیا ٹاک۔ 16 اکتوبر کا جلسہ جو ہے وہ ایک عوامی ریفرنڈم ہوگا۔ اس نالائق اور جو ہے یہ نااہل حکومت جو ہے اس کے خلاف عوامی ریفرنڈم ہوگا، اور یہ حکمران جو ہیں یہ روزانہ انہوں نے 3-4 جو ہے وہ اپنے جو ہے وہ کرائے کے ترجمانوں کی ذمہ داری لگائی ہوئی ہے۔ ایک 10 بجے جو ہے وہ لوگوں کو اور اپوزیشن کو گالیاں دیتا ہے، دوسرا 1 بجے دیتا ہے، تیسرا جو ہے وہ 4 بجے دیتا ہے۔ 16 اکتوبر کا جلسہ نااہل حکومت کے خلاف عوامی ریفرنڈم۔ اوچھے ہتھ کنڈوں سے ڈرنے والے نہیں۔ کرائے کے ترجمان صرف اپوزیشن کو برا بھلا کہنے کی ڈیوٹی پر ہیں۔ آٹا، چینی، ادویات مہنگی، عام آدمی کے لیے گھر چلانا مشکل ہو گیا۔ رانا ثناء اللہ کی تنقید۔ پگ کے نیچے سارے نون لیگی ٹھگ۔ آل شریف نے پنجابی کارڈ استعمال کرنا شروع کر دیا۔ عصبیت اور صوبائیت کارڈ نہیں کھیلنے دیں گے۔ نون لیگ کی دھڑے بازی روز روشن کی طرح عیا ہو چکی۔ فیاض الحسن چوہان۔ مریم نواز کی پیشی پر نیب آفس پر پتھراؤ کا کیس۔ تفتیشی رپورٹ انسداد دہشت گردی عدالت میں پیش۔ رانا ثناء اللہ اور کیپٹن ریٹائرڈ صفدر سمیت دیگر لیگی رہنماؤں کی عبوری ضمانت پہ 15 اکتوبر تک توسیع۔ آصف علی زرداری کی طبیعت ناساز، کراچی کے نجی اسپتال میں زیر علاج۔ سابق صدر کا مکمل میڈیکل چیک اپ اور مختلف ٹیسٹ کیے گئے۔ ہر زبان پر مہنگائی کا نام، جینا حرام۔ آٹا، چینی، دالیں، سبزیاں پہنچ سے دور، عوام فاقوں پر مجبور۔ آٹا 78 سے 80 اور چینی 110 روپے کلو تک ملنے لگی۔ پاکستان کو فلاحی ریاست بنانے کے دعوے دار کہاں ہیں؟ 2 وقت کی روٹی کو ترستے شہریوں کی دہائی۔ چینی دی مہنگائی ٹوٹ جاوے، آٹے دی بھی ٹوٹ جاوے، سبزیاں دی ٹوٹ جاوے۔ عمران صاحب نہیں تو تسی الیکشن ہار جانا ہے کی۔ آٹے کا تھیلا 750 کا تھیلا، 1250 کا تھیلا، غریب آدمی کیا لے؟ آٹا کہتے ہیں 860 روپے کا، وہ 1200 سے اوپر بات کرتے ہیں، تو غریب آدمی کیا کرے گا؟ اشیاء ضروریہ کی قیمتوں میں کمی سے متعلق وزیر اعظم کی زیر صدارت تاہم اجلاس مؤخر۔ مہنگائی کنٹرول کرنے کے حوالے سے بیٹھک اب کل ہوگی۔ ناجائز منافع خوروں کے خلاف ایکشن کی منظوری دیے جانے کا امکان۔
कोरोना वबा के बावजूद हमारी मईशत के लिए मज़ीद खुशखबरी। सितंबर 2020 में बैरून मुल्क पाकिस्तानियों की तरसीलात सर 2 अरब 30 करोड़ डॉलर तक पहुंच गई। मुसलसल चौथे माह सर मुबादला 2 अरब डॉलर से ज़्यादा रहा। वज़ीर आज़म का ट्वीट। वज़ीर आला पंजाब ने प्राइस कंट्रोल कमेटी का आज इजलास बुला लिया। अशाए ज़रूरिया के नर्ख बढ़े जाने का जायज़ा लिया जाएगा। कीमतों में खुद साख्ता इजाफा बर्दाश्त नहीं, आवाम को रिलीफ देने के लिए आखिरी हद तक जाएंगे उस्मान बुज़दार। कोरोना से मजीद 10 अफराद जाँ बहक, अब तक 6,580 अमवात। मोहलिक वायरस से 3,19,317 शहरी मुतासर। 24 घंटे के दौरान 385 नए मरीज। मुल्क भर में एक्टिव केसेस की तादाद 8,552 रह गई। शहरी कायद में मोटरसाइकिल पर डबल सवारी पर पाबंदी का हुक्मनामा मनसूख। सिंध हुकूमत ने नोटिफिकेशन 12 घंटे बाद ही वापस ले लिया। कराची में बदअमनी की लहर को जवाब बनाकर 1 माह की पाबंदी का ऐलान किया गया था। सेहत की सहूलतों का फुकदान, स्कूलों का बुरा हाल। कराची के सुरजानी टाउन अब्दुल रहीम कोर्ट में मसाइल के अंबार। इंतजामिया की गफलत के बायस बराए नाम डिस्पेंसरी पर ले इलाका मकीन इलाज के लिए दूर दराज अस्पतालों का रुख करने पर मजबूर। यहाँ पे गवर्नमेंट का हिसाब किताब तो सही नहीं है, या खतरी अस्पताल तक जाना पड़ता है या गोदरा, या इसलिए सिंध गवर्नमेंट अस्पताल की तरफ भी जाना पड़ता है। हमारे पास पैसा नहीं था, हम किराए से बचने के लिए इधर आ गए, तो हम बिल्कुल ही तबाह बर्बाद हो गए। 10 साल हो गए बारिशों में। जो चीज़ बनाते हैं 1 साल में सारा ख़त्म हो गया। बहुत मुश्किल होती है जाने में। सिविल जाते हैं या खतरी हॉस्पिटल है या गोदरा मुस्लिम है, इसके अलावा यहाँ पे कोई हॉस्पिटल नहीं है करीब। बेस्ट वे ये है कि उनको वैसे ही मार दिया जाए आबादियों को। क्या ज़रूरत है, कोई मुंह हिलाने वाला भी नहीं है। पेशावर टाउन 1 के तरक्याती फंड्स में करोड़ों की हेराफेरी का इंकशाफ। स्ट्रीट लाइट्स, नालियों की तामीर के लिए करोड़ों रुपए की अदायगियां, अमली काम सिफर। ऑडिट रिपोर्ट ने पोल खोल दिया। शहरियों का काली भेड़ों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। जो टाउन 1 की हदूद में आते हैं, कुछ काम इसने नहीं किए। सब पैसा अपने जो सीनियर है ना, सब उन्हें पैसों जब अपने जेबों में डाले हुए। तो हुकूमत के चाहिए इसके खिलाफ सख्त से सख्त कड़ी से उसको सजा देना चाहिए। ठेकेदार भी अगर कोई ऐसा काम करे तो उसका भी जिम्मेदार हुकूमत है। क्यों नहीं पूछते, वो क्यों इसके खिलाफ कार्रवाई नहीं करते, क्यों कोई ऐसा तरीका नहीं लाते सामने के जहाँ भी कोई करप्शन ना करे, कोई बेज़ाब्ता कोई ऐसा काम ना करे कि जिससे आवाम का पैसा ज़ाया हो। अस्सलामुअलैकुम, दुनिया न्यूज़ के साथ मैं हूँ सैयद मंत्री। मैं हूँ जेवेरिया जैद। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का आगाज इस ब्रेक के बाद। बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट ने वजीर आज़म को नोटिस जारी कर दिया है। नोटिस कन्वेंशन सेंटर में वकला की एक तकरीब में शिरकत करने पर जारी किया गया। वजीर आज़म पूरे मुल्क का है, किसी एक ग्रुप का नहीं। जस्टिस काजी फायज ईसा की जानिब से ये रिमार्क्स दिए गए। उन्होंने कहा कि वजीर आज़म रियासत के वसाइल का गलत इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं। जस्टिस काजी फायज ईसा की जानिब से ये रिमार्क्स भी दिए गए कि कन्वेंशन सेंटर किसी की जाती जायदाद नहीं। ये तकरीब किसी निजी होटल में होती तो और बात थी। मजीद जानेंगे मोहसिन एजाज से। मोहसिन, अपडेट कीजिएगा इस बारे। जी बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने वजीर आज़म इमरान खान को नोटिस जारी कर दिया है और ये नोटिस कन्वेंशन सेंटर में वकला की एक तकरीब में शिरकत करने पर वजीर आज़म पाकिस्तान को जारी किया गया है। और दौरान समाअत जस्टिस काजी फायज ईसा ने ये रिमार्क्स दिए कि वजीर आज़म रियासत के वसाइल का गलत इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं। और इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि ये मामला आइन की तशरीह और बुनियादी हुकूक का है। बज़ाहिर कन्वेंशन सेंटर में वजीर आज़म ने ज़ाती हैसियत में शिरकत की और ऐसा लग रहा है कि वजीर आज़म ने वकला की तकरीब में शिरकत करके किसी एक ग्रुप की हिमायत की। उन्होंने इस मौके पर इस्तफसार किया कि इंचार्ज कन्वेंशन सेंटर बताएं कि क्या इस तकरीब के अखराजात अदा किए गए। वजीर आज़म ने निजी हैसियत में कन्वेंशन सेंटर को इस्तेमाल किया। जस्टिस काजी फायज ईसा ने इस मौके पर ये रिमार्क्स भी दिए कि वजीर आज़म मुल्क के हर फर्द का वजीर आज़म होता है। दौरान समाअत एडिशनल एडवोकेट जनरल पंजाब कासिम चौहान ने अदालत को बताया कि हर सियासी जमात का एक विंग है। आइन का आर्टिकल जो 17 है वो इस तरह की तकरीबात की इजाज़त देता है। जस्टिस काजी फायज ईसा का कहना था कि वजीर आज़म का रुतबा बहुत बड़ा है। ये तकरीब किसी प्राइवेट होटल या में होती या किसी प्राइवेट जगह में होती तो और बात थी। इस तकरीब के लिए
टैक्स पेयर के रेवेन्यू का इस्तेमाल किया गया। एडवोकेट जनरल पंजाब की अपनी जिम्मेदारियां हैं। एडवोकेट जनरल पंजाब ऐसी सरगर्मियों में शिरकत नहीं कर सकते और उन्होंने ये भी कहा कि एडवोकेट जनरल पंजाब बनने के बाद इस तरह की सरगर्मियों में वो किस तरह शरीक हो सकते हैं। कन्वेंशन सेंटर के हवाले से जस्टिस काजी फायद ईसा का कहना था कि ये किसी की जाती जागीर नहीं बल्कि ये एक सरकारी इमारत है और आवाम के टैक्स के पैसों से बनी है। उन्होंने इस मौके पर यह भी कहा कि क्या सुप्रीम कोर्ट का जज वकला पैनल की तकरीब मुनक्किद करा सकता है। इस मौके पर उनका जो मुकालमा हुआ एडिशनल एडवोकेट जनरल पंजाब के, उन्होंने ये कहा कि आपकी जो मर्जी है करें, सिर्फ ये बताएं कि क्या वजीर आजम ने ये इकदाम करके दुरुस्त किया। आप सूबे के प्रिंसिपल लॉ ऑफिसर हैं, आप इसलिए दिफा करें कि शायद आपकी नौकरी चली जाए। और इसके बाद अदालत की जानिब से वजीर आजम पाकिस्तान को भी नोटिस जारी